السلام علیکم۔ پرچھائی زینب ذوالفقار کی قلم سے ماخوذ قسط نمبر 1۔ یہ ہمارا ویب اسپیشل ناول ہے، تو برائے مہربانی اس کو آپ کہیں پہ بھی کاپی کرنے سے گریز کریں، اور اگر اس کے ہمیں یوٹیوب پہ کہیں پہ بھی نظر آ گیا تو ہم لوگ آپ کو کلیم کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ چلیں ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی تھوڑی سی ڈرانی ہے، اور تھوڑی سی کہہ لو کہ سسپینس والی ہے، اور کچھ آم، روحوں کے حوالے سے ہے، یا کچھ جنات وغیرہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کس نمبر 1 ہے جی؟ وقفے وقفے سے ہوتی بارش اب متواتر ہونے لگی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچے راستے کی پھسلن کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بارش کا رخ کسی ایک جانب نہیں تھا، تبھی بار بار آنکھوں کے سامنے پانی کی چادر سے تن جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ چلنے کا یہ سفر تقریباً 1 گھنٹے سے جاری تھا۔ بجلی نہ ہونے کے باعث مزید مشکل ہو رہی تھی، اس لیے چند لوگ لالٹینیں لے کر آگے آئے تھے۔ درمیان میں جنازہ تھا اور باقی چند لوگ پیچھے موجود تھے، تاکہ بحفاظت قبرستان تک پہنچا جا سکے۔ کچی پکی سڑک اور ساتھ جاتے دونوں اطراف بہتے نالوں سے بچ کے صرف درمیان میں چلنا کافی دشوار تھا، مگر چھوٹا سا یہ ہجوم رات کے 9 بجے قبرستان کے راستے پر گامزن تھا۔ لالا، بارش زور پکڑ رہی ہے۔ علی نے ایک بار پھر باہر کا جائزہ لیا اور بارش کی روانی دیکھ کر بھاگتا ہوا واپس آیا۔ کیا کریں، مردے کو گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے، اور اس وقت جانا انتہائی خطرناک ہے۔ کسی بزرگ نے بولتے ہوئے سب کو دیکھا تھا، جو کچھ متفق تو تھے مگر کہتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ مغرب کے بعد ہوئی مرگ کے کفن دفن کا انتظام کرتے 3 سے 4 گھنٹے لگ گئے تھے، اور جب دفنانے کا وقت آیا تو اچانک بارش شروع ہو گئی۔ سب نے یہی سوچا کہ بارش رکنے کے بعد قبرستان کا رخ کیا جائے، مگر 1 گھنٹے سے لگاتار ہلکی ہلکی بارش نے اب زور پکڑ لیا تھا۔ سبھی رات کے اندھیروں میں گاؤں کے کچے رستوں پر پیدل ایک جنازے کے ساتھ جانے سے کترا رہے تھے، لیکن کھلے آسمان تلے بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ چاچا، دفنانا تو آج ہی پڑے گا، ہمت کریں، کل تو ہمارا بھی وقت آنا ہے۔ عباس، جو کافی دیر سے سب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، بالآخر اس سے رہا نہیں گیا تو وہ بول ہی پڑا۔ او پتر، کچھ ہوش کے ناخن لے، تجھے بہت جوانی لڑ رہی ہے، جانتا نہیں کیا وہ قبرستان بھاری ہے، اس وقت وہاں جانا جان جوکھے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ چاچے کو اس کا بولنا بری طرح سے کھلا تھا، جو الٹا سب کو شہ دے رہا تھا، تبھی جھڑک کے رکھ دیا۔ او چاچا، اس میں جوانی کی کیا بات ہے؟ عباس کو ان کی غصے اور جھنجھلاہٹ کی سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ چاچا، عباس ٹھیک کہہ رہا، ہمت تو کرنی ہوگی۔ اب جو وقت اس کا مقرر تھا وہ تو گیا، مگر جنازہ گھر میں رکھنا بھی خطرہ ہے، بچوں والا گھر ہے۔ ایک اور جوان بھی اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اب کی بار چپ رہا۔ چاچا خاص طور پر اسے گھور کر ہنکارا بھرتے ہوئے چپ ہو گیا۔ چلو پھر تیاری پکڑو۔ بالآخر انہیں بھی حامی بھرنی ہی پڑی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ رحم کرے۔ کمرے کے اندر اور باہر لوگوں کا جمع غفیر تھا، جس میں بزرگ، بچے، بڑے سب موجود تھے۔ کمرے سے آتی دردناک اور دل خراش خرخراہٹ کی آوازوں سے ماحول میں خوف کی سی کیفیت طاری تھی۔ وہ ایک مرد تھا، مگر اس کے چیخنے میں عورت کی آواز شامل تھی، جیسے کوئی بین ڈال رہا ہو۔ سبھی خوفزدہ بھی تھے اور تجسس بھی لاحق تھا کہ ایک جھلک نظر آ جائے، مگر دروازہ نیموا ہونے کی وجہ سے اندر کا منظر ڈھکا چھپا تھا۔ باہر نکلو، یہاں کوئی تماشا نہیں ہو رہا، نکلو باہر۔ کسی بزرگ عورت نے اچانک سر باہر نکال کر پاٹدار آواز میں سب کو زور سے جھڑکا تھا۔ وہ جو تقریباً ہی اب دروازے کے قریب آ چکی تھی اور بس نظارہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے چیخنے پر اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ وہ اس کے عین سامنے کچی زمین پر آلتی پالتی مارے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی چیخ پر اس نے ایک دم سے سر اٹھایا تھا اور سیدھا اسی کی جانب دیکھا تھا، جو خود بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرد رنگت، بڑی بڑی کشادہ مگر پتھریلی آنکھیں، گھنی داڑھی اور مونچھوں تلے بھر بھرے ہونٹ، چوڑی پیشانی، کھڑی ناک۔ یقیناً وہ بے حد خوبصورت نوجوان تھا، مگر اب اس کے چہرے پر جو ہیبت اور مردنی تھی، اس نے اس کی خوبصورتی نچوڑ لی تھی۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں دھسا کندھوں پر بے ترتیبی سے ڈالے وہ اذیت میں تھا۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے سے وہیں جم گئی۔
उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर सी महसूस हुई थी। वो सर उठाए उसकी आँखों में आँखें डाले बैठा था। उसे लगा जैसे अचानक कोई मुर्दा कब्र से निकल कर ज़िंदा हो जाए। उसे अपने वजूद में खौफ की फरेरी सी महसूस हुई थी। वो साक़त नज़रों से उसे घूर रहा था। इन आँखों में उस पल कोई कैफ़ियत नहीं थी। ना मोहब्बत, ना उनसियत, ना शनासाई। वो आँखें उसे वीरान, खंडर, बयाबान लगी थी, जैसे वो बेबस हो। पीछे हटो, पागल हो गए हो क्या? नज़र नहीं आ रहा उसे दौरा पड़ा हुआ है। किसी ने उसे बुत की मानद वहीं जमे खड़े देखकर झटके से पीछे खींचा था। वो लड़खड़ा सी गई थी और उसे देखा था जो अब भी उसे ही घूर रहा था, बेतासुर और सर्द निगाहों से। अलबत्ता उसके चेहरे पर एक नामहसूस सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो इस सब से लुत्फ़ उठा रहा हो। खौफ के मारे उस पर लर्ज़ा तारी हो गया। एक मर्द पर साया पड़ना उसने पहली बार देखा था। छोड़ दे इसका जिस्म, पलीद रूह, क्या चाहिए तुझे? मौलवी साहब ने पढ़ाई करते इस पर पानी के छींटे मारे थे, मगर अब वो वैसे ही बेहिस्सो हरकत दाँत पे दाँत जमाए जबड़े भींच कर बैठा था। इस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ था। मुसलसल रात-दिन के जागने और दौरे पड़ने से इसकी आँखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ चुके थे। आँखों का रंग जो पहले कभी गहरा भूरा हुआ करता था, अब बदल के हल्का-सा मैला सुरमई-सा हो गया था। वो नफ़ासत पसंदी जो कभी इसकी ज़ात का ख़ासा हुआ करती थी, अब इसका नामो-निशान नहीं था। खुश्क, पपड़ी-ज़दा स्याह होंठ और वहशत-ज़दा घूरती आँखों से वो सबको देखकर कभी हँसता था, तो कभी ऊँची आवाज़ में बैन करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी साहब ने दोबारा से सूरत नास पढ़नी शुरू कर दी थी। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जन्नति वन नास। इसके चेहरे के तासुरात दोबारा से पथरीले हो गए थे। उसने एकदम गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। चूँकि वो इससे कदरे पीछे बैठे हुए थे, इसलिए इसने भी वहीं बैठे-बैठे अपनी गर्दन मुकम्मल पीछे कर ली। इसके इस तरह करने पर मौलवी साहब का भी दिल एक लम्हे को डूब सा गया। वो इंतहाई खूनख्वार नज़रों से उसे देख रहा था, जैसे इसके इस तरह करने से इसके किसी काम में खलल पड़ा हो। और फिर एकदम वो मौलवी साहब पर झपट पड़ा था। ओह! वो कुछ देर के लिए बाहर आई थी। मग़रिब की अज़ानें शुरू हो गई थीं। उसने सोचा नमाज़ का वज़ू कर ले। दुपट्टा सर पर डाले वो अभी नलके के पास बैठने ही लगी थी, जब अंदर से उसकी गुस्सीली और दर्दनाक आवाज़ें बाहर तक आई थीं। उसने एक नज़र पीछे मुड़ के इस सिमत देखा था जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। फिर वापस गर्दन मोड़ ली और चुपचाप वज़ू वाली चौकी पर बैठ के नमाज़ का वज़ू करने लगी। शोर मुसलसल बाहर आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई जानवर ज़िबा हो रहा हो। पहले आस-पास के घरों से कोई न कोई आ जाता था, तो उसे भी आसरा हो जाता था। मगर जैसे-जैसे इसकी हालत बिगड़ती, सब ने ही इससे डर के आना छोड़ दिया था कि कहीं वो बला इन पर ना आ जाए। उसने वज़ू करते उठकर दुपट्टा फैला के लिया और यूँ ही ऊपर देखा। कमरे की छत पर चीलों और कौवों का झुंड बैठा था। रोज़ मग़रिब के वक़्त इसके कमरे की छत पे कभी चील तो कभी कौवे आके बैठते थे। वो इस्तग़फ़ार का विर्द करती अब अंदर जा रही थी। जानती थी वो क्यों चीख रहा था, मगर वो बेबस थी। उसकी तकलीफ़ का सामान उसके पास नहीं था। वो अंदर आई तो वो चारपाई से आधा नीचे कच्ची ज़मीन पर गिरा हुआ था। कुछ देर पहले ही उसे साफ़-सुथरा करके गई थी, मगर अब उसके सफ़ेद बेदाग सूट पर गंदगी गिरी हुई थी। उसने देखा था जिसका ऊपरी धड़ नीचे लटक रहा था और उसे देखते साथ ही जैसे बिफर सा गया था। वो जानती थी वो जो भी बुलाती उससे नफ़रत करती थी, मगर सबकी तरह वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तभी तो इसके साथ थी। वो नज़रें झुकाए इसके पास आई थी। जब वो अपनी गर्दन अकड़ाए टिकटिकी बाँधे उसे ही देख रहा था, जैसे इसके दिल का राज़ पा गया हो। उसकी गर्दन अपनी आम हालत से काफ़ी लंबी हो गई थी और इस तरह धड़ नीचे लटकाए सफ़ेद और सुरमई पथरीली सर्द आँखों से उसे देखता वो बेहद हैबतनाक लग रहा था। अजीब बात ये थी कि इसके नक्कूश में एक दहशत पैदा हो गई थी। उसे देख के यूँ ही लगता था जैसे एक ज़िंदा लाश सामने बैठे लुत्फ़-अंदोज़ हो रही हो। अब भी उसे करीब आते देखकर वो ऐसे बेजान हो गया जैसे रूह इसके जिस्म का साथ छोड़ गई हो। वो डूबते दिल के साथ उसे सीधा करने के लिए झुकी थी जब वो अचानक इसके छूने से पहले ही उछलकर वापस चारपाई पे लेट गया था।
ये सब इतना अचानक हुआ कि उसके बड़े हाथ हवा में ही मुअल्लक हो गए थे। वो अपने धड़कते दिल की आवाज़ कानों में सुन सकती थी। वो जानबूझकर उसे डराती थी, ताकि वो इसके करीब ना आए। वो इस पे अपना हक रखती थी। तभी इसके छूने पर वो आग बगोला हो जाती थी। वो वहीं खड़ी जाने को पलटी जब अचानक कमरे में जलती पीले बल्ब की रोशनी गुल हो गई थी। वो वापस बेख्तियार उसी की जानिब पलट गई, जो घुप अंधेरे में उसे ही देख रहा था। और अजीब बात ये थी कि इस कदर अंधेरे में भी उसे उसकी आंखों में फूटती चिंगारियां साफ महसूस हो रही थीं। चाचा के कहते साथ ही जनाजा दफनाने की तैयारी तेज हो गई। चूंकि बारिश की वजह से बिजली भी जा चुकी थी और आने का कोई इम्कान फिलहाल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए अब्बास ने सबको हर घर से एक एक लालटेन लाने को कहा था। वैसे भी गांव में बिजली हो भी तो सिर्फ मोटर और एक पीले बल्ब तक ही महदूद होती है। ये कोई शहर तो ना ही था जिसकी हर गली में ट्यूब लाइटों का इंतजाम हो। इसलिए सबने हिम्मत करके बिलाखिर कब्रिस्तान की तैयारी पकड़ी, जो अगर पैदल चला जाता तो तकरीबन पौने घंटे की मुसाफत पे था। लेकिन रात का वक्त, अंधेरा, कीचड़ और बारिश की वजह से सभी जानते थे कि रास्ता लंबा होगा। साथ जाने वालों में नौजवान ज्यादा और बुजुर्ग कम थे, जिनमें से कुछ लड़कों ने मोटे मोटे डंडासे और छुरियां भी पकड़ी हुई थी, ताकि सफर बहिफाजत तय हो सके। मगर फिर भी कुछ के चेहरे हवास बाख्ता और रंग उड़े उड़े से थे। अब्बास जनाजे को कंधा दिए हुए था। 6 फुट से निकलते हुआ कद, चौड़े शाने, साफ रंगत और सुर्ख गालों के साथ वो एक खूबसूरत और कड़ियल जवान था, जिसकी आंखों में जहानत के साथ शरारत भी टपकती थी। बिलाशुबा वो एक दलेर और जुर्रतमंद नौजवान था, जिसका हौसला दिलाने का अंदाज और बहादुरी उसे सब में नुमाया करती थी। अभी भी वो चेहरे पर कदरे संजीदे तासुरात लिए सबसे आगे था। रात की तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता चलता वो छोटा सा काफिला एक मुर्दा वजूद के साथ अजीब होलनाकी पेश कर रहा था। लालटेनों की मध्यम रोशनी रास्ता दिखाने के लिए नाकाफी थी। कितनी ही बार वो चलते चलते लड़खड़ाया, जिसकी वजह से बाकी सब भी गिरने लगते थे। और हर बार ऐसा होने पर चाचा बशीरा पलटकर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट से उसे देखता था, जैसे कह रहा हो, अब मजा आया बहादुरी दिखाने का। वो चुपचाप सर झुकाए नाक की सीध में चलता उस वक्त सिर्फ कब्रिस्तान पहुंचने की जल्दी में था। वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन लग रहा था जैसे बस पहुंचने वाले हैं। बारिश का जोर भी अब टूट चुका था। लकड़ियों का पुराना बंद रंगा और बसीदा दरवाजा नजर आते ही सबने सुख का सांस लिया था। वो जो घर से मुसलसल यहाँ तक कंधा बदल बदल के जनाजा उठाए आ रहा था कि चाचा बशीर की चुभती हुई निगाहें देख के वो हत्तल इम्कान निगाहें चुराए सबसे ज्यादा साथ दे रहा था। अब उसे लगा जैसे इसके दोनों कंधे टूट जाएंगे, मगर वो चुपचाप इसी खंदा पेशानी से हर काम में पेश पेश था। चारपाई को वहीं कच्ची जमीन पर रख के दो नौजवान दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुए थे। चर्र की भारी आवाज ने माहौल में इर्ताश पैदा किया था। ये वाहिद ऐसा दरवाजा था जो सिर्फ मौत के आने पर ही खुलता था। बाकी सब वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। कब्र की खुदाई मगरिब के बाद ही हो चुकी थी, मगर बारिश की वजह से सब कुछ वहीं रुक गया था। कच्ची और गीली मिट्टी की बास ने हर शय को अपनी लपेट में लिया हुआ था। सर्द हवा के थपेड़े जिस्म को चीरते हुए गुजरते जा रहे थे। मौसम अभी इतना सर्द नहीं हुआ था, मगर यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बर्फीली तह में दबा हो। एक गहरी खामोशी, जहाँ जानब गर्दिश करते हुए भी सरगोशियां करती महसूस हो रही थी। कुछ देर इंतजार के बाद सुस्त कदमों और नींद से भरी आंखों के साथ चेहरे पर बेजार तासुरात लिए गोरगन आता दिखाई दिया। शायद वो लोग कुछ ज्यादा ही ताखीर से पहुंचे थे। अब्बास ने इनकी बेजारी देखने देखते बाजू पर बंधी घड़ी में वक्त देखा, जहाँ 2:15 हो रहे थे। वो कुछ बोलता भी आ रहा था, मगर दूरी के बायस चेहरे के सिर्फ तासुरात ही दिखाई दे रहे थे। सभी दांत पर दांत जमाए सिर्फ इस बोझ से आजादी की ख्वाहिश रखते थे, जो रात के इस पहर इनके कांधों पर आ पड़ा था। आप लोगों ने मगरिब के वक्त आने को कहा था, और अब जरा घड़ी देखो, रात का तीसरा पहर शुरू हो गया है। इस वक्त कौन दफनाएगा? करीब आते ही उसकी आवाज वाजे सुनाई दी थी, माजरत के साथ, मगर बारिश ने रुकावट डाल दी थी। चाचा बशीर ने आगे बढ़ के बात संभालने की कोशिश की, जिस पर गोरगन का मजाज और भी खराब हो गया। अरे चाचा, तो ऐसी क्या जल्दी थी कब्र में उतारने की? रात घर में ही रख लेते। मुर्दे ने कहाँ भागना था। वो बड़बड़ करता वापस अंदर की जानिब बढ़ चला गया।
कैसे घर में रख लेते। पूरी रात इस तरह रखना खतरे से खाली नहीं था। जिसकी जो आए उसे वहीं जाना है। मरहूम के लवाहिकीन में से कोई बोला तो सभी सर हिलाने लगे। अजीब बात है। वह मजीद कुछ ना बोला था। वो सभी जनाजा उठाए उसकी बताई जगह के करीब आ गए। तेज होती बारिश अब हल्की हल्की कीनमन में तब्दील हो चुकी थी। मुंह पर पड़ते बारिश के कतरे जिस्म में फरीरी सी दौड़ा देते। चूंकि कब्र ताज़ा ही थी और मिट्टी की बुनियाद चारों जानिब थी, इसलिए उसके इर्द गिर्द ऊपर तरपाल डाल के हत्तल इम्कान उसे महफूज रखने की कोशिश की गई थी, ताकि कच्ची मिट्टी कीचड़ बन के दोबारा अंदर न बह जाए। वो सभी मुंतजिर नजरों से गोरगन को देख रहे थे, जो इधर उधर देखता निगाहें चुराए खड़ा था। चलें जल्दी करें, लहद में उतारें, फिर हमें वापस भी जाना है, और वापसी का रास्ता भी इतना ही मुश्किल और लंबा है। अनवार जो मरहूम का रिश्तेदार था, उसने बाकायदा आगे बढ़ के गोरगन को मुतवज्जो किया था। क्या कहा? मैं उतारूं जनाजा? वो हैरान होता 2 कदम पीछे हुआ था। हाँ जी, इसमें हैरत की क्या बात है जनाब? सभी इसके बदकने पर हैरान थे। अल्लाह का खौफ करो, मैं इंसान ही हूँ, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, और मैं ही अकेला ही इनका वाली वारिस हूँ। रात के इस पहर एक-एक मुर्दा वजूद के साथ मैं कब्र में नहीं जा सकता। वो साफ हाथ खड़े करते हुए पीछे हुआ था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये आप ही का काम है। चाचा भी इसके इनकार पर उलझन में था, जबकि बाकी सब चुप थे कि अब क्या करना है। हाँ, ये मेरा ही काम है, मगर मैं खुद को मौत के मुंह में नहीं डाल सकता। आप सभी जानते हैं कि इस कब्रिस्तान के बारे में। क्या पता मेरे साथ कोई हादसा ही हो जाए। वो सरगोशीनुमा अंदाज में बोल के सबको देखने लगा। जो हादसा किस्मत में लिखा होता है ना, वो होके ही रहता है। आप गोरगन हैं, रोज एक ही काम करते हैं। क्या आपका ईमान इतना कमजोर है कि रात के पहर आपको अपने फर्ज से रोक रहा है? अनवार को अब इसके मुसलसल इनकार पर गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक लाके भी दफनाने में इतनी ताखीर हो रही थी। आप लोग जो भी सोचें, मैं नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल से मरहूम के लवाहकीन में से ही किसी को इसके साथ लहर में उतरना चाहिए, या फिर बुजुर्गों में से कोई हिम्मत करे। वो इनकार के साथ नई बात करके इनसे जरा हट के खड़ा हो गया। आवाज चुपचाप बंद मथी होंठों पर रखे उसकी बहस सुन रहा था। इसकी बात पर सभी को सांप सूंघ गया, और सभी एक दूसरे से नजरें चुराए अब खामोश खड़े थे। क्योंकि जो भी था, मगर अपने ही कद बराबर कब्र में उतरने का जो खौफ था, वो हर शय पर भारी था, और कोई भी मौत से पहले मौत की हकीकत से रोशनास नहीं होना चाहता था। तभी अब सब चुप थे और तसब्बुस का शिकार थे। अब्बास ने सबको देखा, जिनके चेहरे पर अब बेचैनी थी, और अनवार, जो सबसे बढ़ चढ़ के बोल रहा था, अब बिल्कुल खामोश था। उसने देखा जनाजे पे लिपटा सफेद कफन तकरीबन गीला हो चुका था। हटें सब, मैं लहद में उतरूंगा। इसकी गंभीर और संजीदा आवाज पे सबने ही इसे चौंक के देखा था, जो अपनी बात कहकर अब कमीज के बाजू फोल्ड कर रहा था, जैसे अब जो कह दिया वो करना ही है। इसकी आंखों की संजीदगी बता रही थी कि वो जो कह रहा है करके दिखाएगा। शाबाश, शाबाश पुत्र, बहुत सवाब का काम करेगा तू। अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। चाचा जिसे पहले इसकी जवानी से शिकवा था, अब बढ़ चढ़ के इसके कंधे पर थपक रहे थे। बाकी सब इसकी दलेरी के कायल हो गए थे कि बहरहाल ये वाकई बहुत दिल गुर्दे का काम था। वो बिना किसी की जानब देखे मजबूत कदम रखता कब्र के नजदीक पहुंच गया था, जो काफी लंबी और गहरी थी। उसने एहतियात से वहीं बैठते पहले अपने दोनों टांगे नीचे लटकाई थी। अली और हुसैन, जो उसी के हम उम्र थे, दोनों ने उसे सहारा देते आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसकाया। बारिश होने की वजह से पांव जमाना मुश्किल था। हल्की सी थक की आवाज के साथ वो बिलाखिर अंदर उतर चुका था। हालांकि वो एक ऊंचा लंबा डील डोर रखने वाला दराज कामद नौजवान था, मगर खड़े कद के साथ भी इस वक्त इसका सिर्फ चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसने सीधे खड़े होते हुए इन सबको देखा, जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई और ही मखलूक हो। उसे सबके चेहरों पर सवाए हैरत के और कुछ ना दिखा। वो अच्छी खासी बहादुर और नडर लड़की थी। इसके बावजूद इस पल इसका दिल एकदम डूबा था। उसे लगा जैसे वो वहीं जम सी गई थी। कदम उठाना मुश्किल था। वो पलटना चाहती थी, मगर उसके वजूद ने हर किसी भी जुम्बश न की थी, और वो वहीं घुप अंधेरे में खड़ी सामने लेटे वजूद की शोला बार घूरती आंखों को महसूस कर रही थी कि बहरहाल इन आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। उसे लग गया
जैसे अब वो वहाँ से कभी भी नहीं हिल पाएगी। उसे अपना साँस रुकता हुआ महसूस हुआ, तब जब उसे अपने कानों में खुशरनोशी के अंदाज़ में बोलता महसूस हुआ। तेज़ और झुलसा देने वाली वो साँस नफ़रत से भरी हुई थी। बेइख्तियार उसने आँखें बंद करके अपने जिस्म का पूरा ज़ोर लगाते आयतुल कुर्सी का विर्द किया। उसे लग रहा था जैसे एक लफ्ज़ मनो टनो वज़नी हो गया हो और वो पूरी ताकत से उसे खींच के ज़ुबान तक ला रही थी। दिल में बार-बार आयतुल कुर्सी की पहली 2 आयत का विर्द करते उसे साफ़ महसूस हो रहा था कि कोई इसके बेहद करीब, बिल्कुल इत्मीनान से खड़ा उसे देख रहा हो। वो धक-धक करते दिल के साथ कुछ भी करने से कासिर थी, फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी उसने। बिलाखिर चंद लम्हों बाद उसे अपना वजूद हल्का होता महसूस हुआ था। उसने डरते-डरते सख्ती से नीची आँखें खोली थी, तो सामने ही वो सीधा लेटा साफ-सुथरे कपड़ों में बस मुर्दा मगर नरम मुस्कुराहट से उसे ही देख रहा था। पीली बल्ब की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो दम घुटता अंधेरा जाने कब छट गया था। उसने एहतियात से अपनी पोजीशन बनाते हुए अब इन्हें देखा था, जो सभी जनाज़ा बिल्कुल करीब ले आए थे। गीली, गहरी, तंग कब्र में मुश्किल कदम जमाए वो अकेला खड़ा था। एक पल को उसे लगा था जैसे वो किसी बंद बर्फीली गली में आ खड़ा हुआ हो, जहाँ घुटन थी, बाँस थी और सब कुछ सर्द था, बंजर, वीरान, बयाबान। उसने सर झटक कर जैसे हर ख़्याल को भी झटका था। शायद नींद की कमी और थकावट की वजह से ऐसा हो रहा था। बारिश के कतरे मुसलसल उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। वो हाथ ऊपर उठाया बिल्कुल तैयार खड़ा था। अनवार, अली और हुसैन ने जनाजे को मजबूती से थामे आहिस्ता-आहिस्ता नीचे उतारा था, जहाँ उसने तकरीबन अपने बाजुओं में जकड़ लिया था। वो बिल्कुल कच्ची दीवार से लगकर खड़ा हो गया और एहतियात से मैंने उसे नीचे करते पाँव की जानिब से लहद में उतारा था और फिर उसका ऊपरी धड़ नीचे करने को झुका था, जब अचानक ही मुर्दे के चेहरे से कफन उतर गया था। वो बिल्कुल इस पे झुका हुआ था। दोनों के चेहरे आमने-सामने थे। अब्बास ने यूं ही गैर इरादी निगाह डाली थी और एक पल को जैसे वो भी थम सा गया था। लट्ठे की मानद सफ़ेद बेरौनक चेहरे पर जिंदगी की रमक अब मफकूद थी। बेरंग, बेजान होंठ, खुला हुआ मुंह और साकत जिस्म। वो अच्छा खासा मजबूत असाब का मालिक इंसान इस पल मौत की हकीकत को इंतहाई करीब से देखते हुए ठठर सा गया था। क्या हुआ? तुम ठीक हो? वो झुक के जब सीधा ही ना हुआ तो अली की घबराई हुई आवाज आई थी। वो झुके-झुके ही उसे देखा गया, जो अब एक बेरूह जिस्म था और आवाज देने, इन्हें रोकने की हालत में भी नहीं था। मगर उसे लगा जैसे वो अज़ियत में हो, कब्र की पहली रात की अज़ियत। वो एक झटके से सीधा हुआ था, उसे लगा जैसे उसे जकड़ लेगा वो। मैं ठीक हूँ, बेध्यानी में बोलता अब तक वहीं उसके पास ही खड़ा था। ये कैफियत बहुत अजीब थी। चलो बाहर आओ फिर। हुसैन को उसके वहीं बुत बन के खड़े होने पर हैरत भी हुई थी और उलझन भी। उसने सर उठा के इन्हें देखा और फिर बेमकान के अंदाज में उसके बड़े हाथों का सहारा लिए बाहर आ गया। तेजी से पड़ती मिट्टी में वो चेहरा अब दफन हो चुका था। वो बोझल सा दिल के साथ सर झुकाए चुपचाप खड़ा था। यहाँ तक कि कब्र तैयार हो गई। सबने कुछ देर वहीं खड़े होकर सूरत फातिहा पढ़ने के लिए दुआए मग़फ़िरत की और फिर वापसी की राह ली। वो भी भारी दिल और बोझल कदमों से इनके साथ था। क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये शोखी मारने की, जब इनके अपने रिश्तेदार कतरा रहे थे। वो सुबह सो के उठा तो पहला सामना ही राबिया बाजी से हुआ, जो इससे 7 साल बड़ी थी और शादीशुदा थी। वो 2 ही बहन भाई थे। राबिया की शादी वहीं उनके चचा के बेटे से हुई थी और साथ ही घर था, इसलिए वो रोज़ शाम को इधर भी चक्कर लगा लेती थी। बल्किस बेगम की वफ़ात के बाद बस आबिद साहब और अब्बास ही थे, जिसकी फ़िक्र में वो रोज़ चली आती। अब्बास इन्हें बहुत प्यारा था, छोटा और इकलौता था, इसलिए भी वो ज़्यादा ही लाड उठाती थी। वरना 6 फुट के कद के साथ वो ज़हानत से भरपूर आँखें लिए लाड करता अजीब ही लगता था। मगर राबिया के लिए वो औलाद जैसा ही था। 5 साल गुज़रने के बावजूद अल्लाह ने इन्हें इस तोहफ़े से अब तक नहीं नवाज़ा था, मगर इन्हें कोई शिकवा नहीं था। क्या बाजी, आप भी चाचा बशीरे वाली बातें कर रही हैं।
वो नींद से बोझल आंखों के साथ उलझे घने बालों में उंगलियां चलाता कदर सुस्त अंदाज में चारपाई पर नींद दराज था। सुबह वो फज्र के वक्त वापस आया था। सब सोए हुए थे, इसलिए दीवार पर लांग के वो अंदर आके खुद भी चुपचाप पड़ गया। और अब 11 बजे आंख खुली तो सामने ही वो तंदूरी के पास बैठी उसके लिए नाश्ता बनाती बरहम भी हो रही थी। चाचा ठीक तो कहते हैं, बरादरी अच्छी चीज होती है, मगर जो तुम करते फिरते हो इसे बहादुरी नहीं बेवकूफ़ी कहते हैं। वो आटे का पेड़ा बनाते हुए इसे भी सुना रही थी। जो चुपचाप पड़ा अब इनकी डांट खाता मुस्कुराते हुए मूंछों को भी ताव दे रहा था, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। इरफान भाई कहाँ है? वो खड़े होते हुए एक भरपूर अंगड़ाई लेते बाहर बात बदल के बोला। जब से वापस आया था जिसम में थकन और अजीब सी अकड़ाहट थी। सर अलग भारी हो रहा था। मगर अब इन्हें अगर ये बता दो तो उन्होंने फौरन ही परेशान हो जाना था। बदल लो बात अब। वो भी इप्सी की बहन थी, समझती थी इसका मजाक। अच्छा बाजी, एक प्याला चाय का ही दे दे, मैं नहा लूं जरा, सुस्ती हो रही है। वो आंखें मारता इन्हें कहता खुद गुस्सा खाने की तरफ आ गया। ये लड़का नहीं सुधर सकता। वो बड़बड़ाते हुए रोटी पर मक्खन लगाने लगी थी। इसकी आवाज में गुर्राहट थी और आंखें जैसे लहू रंग हो रही थी। मौलवी साहब को लगा जैसे इन पर कोई पहाड़ आ पड़ा हो। वो ऐसे तड़पने लगे जैसे इनका सांस बंद हो गया हो। वो पूरी तरह इन पे झुका हुआ था, अपने दोनों घुटने इनके सीने पर रखे। वो अपना चेहरा बिल्कुल इनके चेहरे के करीब ले आया था। उन्होंने फटी और बाहर को आई आंखों के साथ ना चाहते हुए इसकी आंखों में देखा था। इसके चेहरे पर इस्तेहज़ा था, हकारत थी और ताकत थी। वो कोई बहुत ताकतवर बला थी, जिस पर इनकी पढ़ाई का कोई असर नहीं हुआ था। वो इनके एक लम्हे के खौफ पर हावी हो गई थी। अब ये उसकी मर्जी थी कि वो इन्हें जिंदा छोड़ती है या मुर्दा। कमरे में मौजूद बाकी नफूस खौफ से चिल्लाते बाहर भाग गए थे। अब सिर्फ दो चेहरे उसके मुकाबले थे, इनका खौफजदा चेहरा और उसकी हैबतनाक आंखें। इन आंखों में किसी और की आंखों का गुमान होता था, जैसे उसके वजूद में कोई समा गया हो या समा रहा हो। ये तो वो जानते थे कि कोई जिन भूत नहीं बल्कि कोई बदरूह थी, लीद रूह, जो जाने कब और क्यों इस पर काबिज हो गई थी। वो बिल्कुल बेजान से उसके रहम करम पे थे। अब जो अजीब निगाहों से इन्हें देखते हुए अब थोड़ा सा पीछे हो गया था। ये मेरा है, अचानक वो किसी और जबान में बोला, मगर इसमें दो आवाजें थी। वो हक तक से पहली बार इसे मुकम्मल जाहिर होते देख रहे थे। ये वजूद मेरा है, इस पर तुम में से किसी का कोई हक नहीं। वो खुद की जानिब ही इशारा करते इन्हें और गर्दन चारों जानिब घुमाता सबको देखता हुआ बोला था, इसे आजाद छोड़ दो, अब ये तुम्हारा नहीं रहा। उसने कहते साथ ही गर्दन को झटका दिया था। कड़क कड़क की आवाज के साथ इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आए थे। वो कहते कहते एकदम उठा था और आराम से चलता हुआ चारपाई पर जाके लेट गया था, जैसे कोई जनाजा पड़ा हो। मौलवी साहब में एक लफ्ज तक बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। वो सब समझ गए थे, अब कुछ करना बेकार था। उस पर वो बला काबिज हो चुकी थी।